हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना स्लैम्स बीबीसी रेसिज्म गोज वायरल अगेन। चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये भाई? There's a modern saying, I'm sure you've all heard it. It goes, the internet is forever. That's the saying. What this means is that once something is on the internet, it will stay there forever, always ready to come back to life. And this has just happened with a video featuring Vikas Khanna, who's a celebrity chef based in New York, and he's going viral again because of an interview from the year 2020 during the peak of the Wuhan virus pandemic. You remember those bleak days? The world was under lockdown, people couldn't leave their homes, incomes and savings were drying up, and ordinary people were going hungry. Vikas Khanna was among those who tried to help. He started an initiative called Feed India. From the US, he coordinated a massive meal drive to help the needy in India. The initiative was lauded. It gained global attention, including from the BBC. They asked him for an interview, and that interview went viral because of the following interaction. Oh. You've cooked for the Obamas. You've been on TV show with Gordon Ramsay. But it was not always that way, was it? You are not from a rich family. So, I dare say, you understand how precarious it can be in India. The interviewer made that statement. It's a standard, You're casual, from India? run-of-the-mill racism. इसलिए you know He just it. ये क्या मतलब? randomly perpetuated some stereotypes about India. Khanna was not born a billionaire, so then he must have understood hunger. He is from India after all. Khanna didn't miss a beat though. He responded with this. I understand, but my sense of hunger didn't come from India so much, because I was born and raised in Amritsar. And we have a huge community kitchen where everyone gets fed. The entire city can eat there. But my sense of hunger came from New York. ये अच्छा था। Good. That was the reply, and it has gone viral 4 years after he said it. Why has it caught the public imagination once again? Well, look at these social media posts. You'll notice the pattern. It shows that Indians are fed up with Western arrogance, with the absurd stereotypes, and this keeps happening. In 2014, it was this cartoon by the New York Times. They इसकी put हमने this की up तो when है, India was जवाब दिया planning तो है a कार्टून mission to बनाकर। Mars. The cartoon went viral again last year after the Chandrayaan-3 mission, when India became the first country to successfully soft land a spacecraft on the moon's south pole. Last year we saw this as well. A cartoon दोनों put देखे up हमने। by a German publication, Der इस पे Spiegel. रिएक्शन किया था हमने। It was when India overtook China to become the world's most populous country. Look at how the German publication chose to depict India. Again, blatantly racist. Like I said, this keeps happening time and again. The West keeps insulting countries like India. Vikas Khanna's response not only defended India well, he also said that his experience with hunger came from New York, वही तो highlighting था, the fact मुंह तोड़ that जवाब। most of the West likes to overlook. Millions of Americans experience food insecurity, including over 13 million children. Their families struggle to put three meals on the table. But you won't see a British journalist say, "You're not from a rich family, so I dare say you understand how precarious it is to be in the US." That will never happen. The Western media likes to pretend that everything is fine at home, that the real problems are all elsewhere, ये and that Salvation anyone Army। born outside the West must have barely survived starvation. It's an absurd stereotype rooted in racism, and Vikas Khanna's response called it out. That's why it's being celebrated 4 years after he said it, and it will probably go viral again in the future. देखो भैया, जवाब तो बहुत अच्छा था, पर इसको गलत कंटेस्ट में कैसे ले सकती है दुनिया की ये सोच के कि अमेरिका ने ये पूछा था, अमेरिका ने ये किया रेसिस कमेंट। ये ध्यान में रखना है, ये बीबीसी ने किया है जो कि यूके की बेस्ड है। तो ये अमेरिका ने नहीं किया, ये बीबीसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। ये रेसिज्म जो है बीबीसी ने किया है, अमेरिका का नहीं।
मैं तो कह रही हूँ जब उसने जवाब दिया, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो न्यूयॉर्क में रहता होगा इसलिए उसने ये न्यूयॉर्क का एग्जांपल दिया, भैया मेरे को हंगर का तो न्यूयॉर्क में है। मजा ये आना चाहिए था, उसको ये बोलना चाहिए था, क्योंकि बीबीसी यूके की है ना, तो बोलना चाहिए था लंदन में जो है ना, मैंने हंगर तो लंदन की देखनी चाहिए, उस टाइप से उनको जवाब देना चाहिए था। पर जवाब अच्छा है, वो बता रहे हैं कि भैया जस्ट बिकॉज यू आर अ वेस्टर्न कंट्री, और यूके का तो सबको पता ही है जो अपने आप को सुपीरियर समझती थी और अब उसका क्या हाल हो रहा है, तो उसको जवाब तो बड़ा अच्छा दिया है कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, हम इंडिया में, मैं इंडिया से हूँ पर मैं उस जगह से हूँ अमृतसर में जहाँ पे मतलब खुले लंगर टाइप लगते थे, तो सबको खाना मिलता है, ऐसे नहीं है गरीबों को खाना मिलता है, फ्री में खाना मिलता है। पर तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे देशों में कौन से फ्री के खाने इस टाइप से मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर भी लंगर लुंगर जो है वो इंडियंस की कम्युनिटी ही यहाँ पे करती है, जिसमें इवन वो कौन सा है हरे कृष्णा हरे इस्कॉन वाले, वो भी गरीबों को और ऐसे जो है उनको देते हैं, फ्री में देते हैं, वहाँ पे लंगर लगते हैं, वहाँ पे फ्री। पर लंगर में तो यहाँ पे मोस्टली सिख और इंडियंस ही होते हैं, पर इस्कॉन में तो वाकई गरीब लोग भी आके खाते हैं। तो अच्छा आंसर दिया है, पर मैं तो हैरान हो रही हूँ कि ये जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा था बीबीसी का, इसमें दिमाग क्या रत्ती भर नहीं है कि तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, बड़ा सोच के तो तुम बोलो क्या बोल रहे हो। तुम इंडिया को ये दिखा रहे हो कि जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम इंडिया और तुम क्योंकि बहुत अमीर खानदान से नहीं थे इसलिए तुमने हंगर देखा होगा। मैं पूछ रही हूँ भैया हर बंदे ने हंगर देखी होती है। तुमको जब सोचो मतलब अगर 3 बजे तुम खाना खाते हो और किसी वजह से तुम 3 बजे की लेट हो जाते हो तो तुम्हें भूख नहीं लगती, दैट एट दैट टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग हंगर। एवरीबडी एक्सपीरियंसेस हंगर टू सम डिग्री एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ एट सम टाइम। तो तुमको ये बोलने की क्या मतलब था कि क्योंकि तुम अमीर नहीं हो और इंडिया से हो तो तुमने तो हंगर और ये सब तुमने फील किया ही होगा। हद ही है यार, कमाल है। काफी नेगेटिव तरीका है बहुत है बोलने का इंडिया से, क्योंकि तुम इंडिया से हो तो मतलब कहने का मतलब इंडिया से हो तो गरीब है और पता ही होगा। हाँ, ये कहने का मतलब है। और रिस्पॉन्स इतना नहीं, मुझे गरीबी न्यूयॉर्क में पता चली है देखकर। भूख क्या होती है, भूख मरी जो है न्यूयॉर्क में देखी है, विच इज ट्रू। हाँ है, अगर बुरा हालत इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारा पंगा पड़ा हुआ है। अगर आप किसी भी यहाँ पे लाइब्रेरी को देखते हैं, लाइब्रेरी, तो ज्यादा आपको लोग होमलेस नजर आते हैं जो पहले नहीं थे। बाहर हीट से बचने के लिए लाइब्रेरी के हीट से भी यार, जैसे यहाँ पे तो टेक्सास में अभी गर्मी होती है तो गर्मी इतनी एक्सट्रीम होती है, वो उससे बचने के लिए लाइब्रेरी के वहां पे आके बैठ जाते हैं, आराम से मुंह हाथ धोते हैं। हाँ। उनके और गंद मचा देते हैं, अपना काम धाम करते हैं, साफ सुथरे होते हैं रेस्ट रूम में, मतलब ये सब काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो गरीब है। वो जब देखें कि वो लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकल के अपनी कार में जाते हैं और कार में उन्होंने सारा सामान अपने घर का पूरा मतलब वही उनका घर है, वो कार से रह रहे हैं। तो कार में रात को सोते हुए थे, सुबह उठे, लाइब्रेरी में जाके आपने रेस्ट रूम वगैरह कर लिया, नहाने के लिए आई डोंट नो कहीं और जगह नहाते होंगे तो, या कई के दिनों तो नहीं नहाते होंगे तो सिचुएशन नहीं, स्मेल आती है उनसे जब पास से निकलो, इतनी स्मेल आती है और लाइब्रेरी में जाने का मन नहीं करता कि भैया इस टाइप के लोग वहां बैठे हैं। अगर आप मान लीजिए लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी का बहुत शानदार है, लाइब्रेरी इतनी अच्छी, मगर उसमें लोग देखते हैं कि आपको अगर दिख जाता है कोई 40% लोग होमलेस है तो आप बोलेंगे यार ये फिर गड़बड़ी होगी। लाइब्रेरी का ये वही ऐसे बैठे हुए होते हैं पूरा सुबह से शाम तक फ्री इंटरनेट। देखिए इसमें दया हर एक को आएगी कि बेचारे होमलेस हैं, उनकी हालत खराब है, दुख होता है, पर लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए कि आप वहाँ पे लेट के सो रहे होते हैं। हाँ, मतलब बुक्स लेके आपके पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी उसके लिए नहीं है कि आप जो है उनके बाथरूम यूज कर सकें, वो आराम से बैठ सकें, सो सकें, उस काम के लिए नहीं है। ये रेस्ट एरिया नहीं है, ये जो है पढ़ने की जगह है, बुक्स की जगह। तो इसमें सिर्फ लगता है कि लाइब्रेरी का पर्पस अब कुछ और हो गया। और ये टेक्सास में तो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं नॉर्दर्न टेक्सास में बहुत सा, एक लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल लाइब्रेरीज में वही सिचुएशन है। इतनी अच्छी लाइब्रेरीज और उसमें ऐसे लोग आके बैठे, लाइब्रेरी के पर्सनल अब लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं, रेस्ट रूम के अंदर घुसते हैं, नॉक करते हैं मेक श्योर करने के लिए कोई ड्रग यूज तो नहीं कर रहा, कुछ और यूज कर रहा, ये हाल हो चुका है। नहीं, और साथ में यू नो कि जब वो ये चीजें यूज करते हैं, जैसे बाथरूम जाएंगे कुछ गंद मचा देंगे, वो इतना गंदा होगा आपको अंदर जाने का मन नहीं करेगा फिर। तो ऑब्वियसली वो लोग भी इसलिए चेक करते रहते हैं क्योंकि गरीब इंसान और कहीं जैसे सो रहे होते हैं ना तो उनको फिर बोलते हैं यू नॉट अलाउड टू स्लीप। वो सिक्योरिटी वाले चक्कर मारते हुए बोलते रहते हैं कि यहाँ पे आप सोना अलाउड नहीं है, आप सो नहीं सकते हो। वो यही चक्कर मार के देख रहे हो तो कोई सो तो नहीं रहा
अब बेचारा कोई स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते सो जाए हमारा जैसे। होमलेस जो है वो तो नजर आते हैं बेचारे, होमलेस है अपने साथ में बैग लेके हाँ, उनके बैगों से पता चल जाता है, उनको देख के पता चल जाता है ये होमलेस लग रहे हैं। बिल्कुल, उनका इतने बड़े बड़े बैग लेके पूरा सामान उनके साथ होता है। पर एनीवे, जवाब ऐसे ही आंसर देना बनता है और देना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे या हमसे पूछे तो ऐसे ही जवाब दो, ताकि बंदा 100 बार ये आगे से सोच के किसी और नेक्स्ट किसी इंडियन से पूछे ये सवाल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।